Mm-hmm. 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 Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow, I don't take shit, I don't take shit. I got no for the fakeness, the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
शरद का महीना था। आसमान पर धूल के रंग की परछाई तैर रही थी। गांव के खेतों में सूखा पड़ा था और धरती की दरारें जैसे किसी अधूरी प्रार्थना की रेखाएं लग रही थीं। उसी धरती पर अपने फटे पैरों से चलता था रघु, एक साधारण किसान जिसकी मेहनत तो अनंत थी, पर फसल पिछले 3 सालों से उसे धोखा दे रही थी। रघु हर सुबह सूरज के साथ उठता, हल उठाता और उम्मीद के साथ खेतों की ओर जाता, पर शाम होते होते वही थकान, वही सूखी मिट्टी और वही अधूरी आस लौट आती। उसकी आंखों में अब पहले जैसा चमकता विश्वास नहीं था, बस एक बुझे हुए दीपक की लौ थी जो हर झोंके से डरती थी। एक दिन उसने खेत की मेड़ पर बैठकर आसमान देखा। उसकी आंखें भर आईं। माँ काली, अगर तू है तो इतनी चुप क्यों है? वह धीमे स्वर में बुदबुदाया, कहते हैं तू सब देखती है, तो क्या मेरी यह टूटी उम्मीदें नहीं दिखती? वह मिट्टी उठाकर अपने सिर पर रखता है, मानो अपनी हार को स्वीकार कर रहा हो। पर तभी एक बूढ़ी औरत उसकी ओर आती है। उसकी आंखों में करुणा थी, पर चेहरे पर अजीब सी दृढ़ता। वह बोली, बेटा, धरती भी तो तेरे जैसी है, वह भी चुप रहती है, धैर्य रखती है। उसे भी तो सालों लग जाते हैं किसी बीज को सोने जैसा अन्न बनाने में, फिर तू इतना अधीर क्यों? रघु ने उनकी ओर देखा। पर माँ, जब कोई सुनता ही नहीं तब चुप रहना कठिन होता है। वह मुस्कुराई, माँ सुनती है, बस तू सुनना भूल गया है। उस रात रघु पहली बार बिना शिकायत के सोया। सुबह जब आंख खुली तो उसे भीतर कुछ अजीब लगा, जैसे मन शांत था। वह उठा और अपनी झोपड़ी के कोने में रखा पुराना दिया जलाया। उसने पहली बार बिना मांग किए बस एक बात कही, माँ, अगर तू चाहे तो मैं सब सह लूंगा, बस मुझे टूटने मत देना। उसकी आवाज में कोई आवेश नहीं था, बस एक गहरी थकान थी जो अब स्वीकार में बदल रही थी। वह खेत गया, मिट्टी को हाथों में लिया और धीरे से बोला,
तू भी मेरी तरह चुप है। चल आज से हम दोनों शिकायत नहीं करेंगे। धीरे धीरे रघु के भीतर एक नई आदत जन्म लेने लगी, धैर्य की आदत। वह अब हर दिन खेत में काम करता, भले ही बारिश न हो। वह मिट्टी पलटता, घास हटाता और हल के पीछे चलता। पर अब उसकी चाल में निराशा नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी स्थिरता थी। गांव वाले कहते, रघु पागल हो गया है, बिना पानी खेत जोत रहा है। पर रघु मुस्कुरा देता, माँ काली भी तो बिना किसी कारण कृपा कर देती है, मैं भी करूंगा। एक दिन उसकी झोपड़ी में तेज आंधी चली, छप्पर उड़ गया, बर्तन बिखर गए और चूल्हा बुझ गया। रघु चुपचाप बैठा रहा। उसके मन ने बस इतना कहा, शायद माँ आज भी देख रही है कि मैं कितनी देर तक शांत रह सकता हूँ। वह बोला नहीं, बस आंखें बंद कर लीं। आंखों के भीतर अंधेरा था, पर उस अंधेरे में एक छवि उभर रही थी। आज की ताप की खाने की नैती ही माँ काली की। वह विकराल नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे किसी साधक की माँ हो, स्नेह से भरी लेकिन मौन में गहरी। रघु ने अनुभव किया कि जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो। माँ की आवाज आई, धैर्य वह दीप है जो जलता नहीं, जलाता है। तेरे भीतर मैं उसी अग्नि को स्थिर कर रही हूँ। अभी मत देख परिणाम, पहले अपने भीतर के संकल्प को सींच। अवान्या से क्या नाई के। रघु की आंखें खुलीं और उसके होठों पर पहली बार मुस्कान थी। आंधी थम चुकी थी। बाहर पेड़ झुके हुए थे, पर उसके भीतर का पेड़ अब सीधा खड़ा था। उस दिन से वह माँ को विनती नहीं करता था, बस संवाद करता था। कभी मिट्टी से, कभी हवा से, कभी खुद से। गांव वालों को अब उसकी आंखों में कुछ नया दिखता, एक विश्वास जो किसी मंदिर की मूर्ति जैसा शांत था। एक दिन जब आसमान में पहली बार बादल घिरे, तो उसने हल उठाया और खेत में उतरा। उसने कहा, माँ, अगर यह पानी बरस गया तो ठीक, अगर नहीं तब भी ठीक। और उसी क्षण हवा बदली, मिट्टी की गंध उठी और बूंदें गिरने लगीं। रघु ने सिर उठाया। वह बोला नहीं, बस आंखें बंद कर मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब उसे पता था, धैर्य मांगने की नहीं, जीने की चीज है। उस रात वह फिर माँ के सामने बैठा और बोला, माँ, तूने मेरे खेत में अनाज नहीं दिया, पर मेरे भीतर जो अन्न बोया वह अमर है। उस दिन से रघु बदल गया। अब उसका जीवन फल के लिए नहीं, बल्कि भाव के लिए था। वह जो भी करता उसमें माँ का नाम होता, और हर ऐसे एक एक चीज, हर असफलता में भी वह कहता, ये भी तेरी लीला है माँ। गांव के लोग अब उसके पास आते, सलाह मांगते। रघु कहता, धैर्य को ईश्वर का सबसे बड़ा रूप मानो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। माँ काली के आशीर्वाद से उसके खेतों में फिर से हरियाली आई। लेकिन रघु के लिए असली फसल तो उसके भीतर उगी थी, आत्मविश्वास की। बरसात के बाद का मौसम था। रघु के खेतों में नई कोपलें झांकने लगी थीं। मिट्टी अब सूखी नहीं रही थी, उसमें जीवन की गंध थी। वही गंध जो किसी साधक के भीतर की शांति जैसी होती है। रघु रोज खेत में जाता, पौधों से बात करता, उन्हें हाथ से सहलाता। गांव के लोग कहते, अब तो रघु सचमुच पागल हो गया है, पेड़ों से बातें करता है। पर रघु मुस्कुराता और कहता, पागल वही है जो माँ की लीला को शब्दों में समझना चाहता है। रघु अब हर सुबह सबसे पहले अपने घर के बाहर रखे छोटे से मंदिर में दिया जलाता। उस दिए की लौ अब छोटी नहीं थी, वह स्थिर थी, जैसे उसके भीतर का आत्मविश्वास। वह अब माँ काली से कोई मांग नहीं रखता था, बस कहता, माँ, तू मेरे साथ है तो रास्ता चाहे कांटों से भरा क्यों न हो, मैं चलता रहूंगा। धीरे धीरे गांव के दूसरे किसान रघु की ओर ध्यान देने लगे। जिस आदमी को कभी सब अभागा कहते थे, उसी की फसल अब सबसे पहले हरी हुई। लोग उसके पास आए। रघु, तूने क्या किया? कौन सा बीज लगाया? रघु बोला, बीज तो वही जो तुमने लगाया, फर्क बस इतना है कि मैंने माँ का नाम बोया और तुमने डर बोया। एक दिन एक व्यापारी उसके गांव में आया। उसने रघु की फसल देखी और कहा, अगर तू चाहे तो मैं यह सारी फसल शहर भेज दूं, तुझे अच्छा दाम मिलेगा। रघु कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं सौदा नहीं करता, सेवा करता हूँ। यह अनाज पहले उन परिवारों का है जिन्होंने सूखे में मेरा साथ दिया। जो बचेगा वह माँ का प्रसाद है, जिसे जो चाहे ले जाए। व्यापारी ने ताना मारा,
इस सोच से तू गरीब ही रहेगा। रघु हंसा, जिसके पास माँ काली का आशीर्वाद हो उसे अमीरी क्या देगी और गरीबी क्या ले जाएगी। रात को जब रघु ने आकाश की ओर देखा तो तारे किसी दीपमाला जैसे चमक रहे थे। उसे माँ काली की वही छवि याद आई, शांत, विशाल और मौन। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें अब डर से नहीं, विश्वास से भरी हैं। धीरे धीरे रघु का नाम गांव में फैलने लगा। लोग उसे काली माँ का किसान कहने लगे, पर रघु के लिए यह उपाधि नहीं, एक जिम्मेदारी थी। वह कहता, माँ का नाम लेकर जो काम किया जाए उसमें घमंड की कोई जगह नहीं होती। एक दिन गांव में फिर संकट आया। नदी का पानी बढ़ने लगा और कई खेत डूब गए। रघु का खेत भी पानी में डूबने लगा। गांव वाले घबराए हुए थे। कुछ लोग बोले, अब क्या करेगा रघु, देख इस बार माँ ने भी तेरा साथ छोड़ दिया। रघु चुप रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, माँ कभी साथ नहीं छोड़ती, बस परीक्षा का समय बढ़ा देती है। उस रात वह मंदिर गया, घुटनों के बल बैठ गया और माँ की मूर्ति के सामने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर हंसी थी। वह बोला, माँ, तू चाह ले तो इस धरती को पल में सूखा कर दे या हरा कर दे, मगर मैं अब डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे भीतर है। तेरी मौन उपस्थिति ही मेरा बल है। अचानक उसे भीतर से एक स्वर सुनाई दिया, धैर्य वह नदी है जो कभी सूखती नहीं। तू उसका किनारा बन, उसे रोकने की कोशिश मत कर। रघु ने आंखें खोलीं। उसके भीतर एक अद्भुत शांति थी। वह उठकर बाहर आया और अगले ही दिन अपने खेत की ओर चल पड़ा। वह पानी में उतर गया, कंधे तक पानी में डूबा हुआ वह अपने पौधों को बचाने में लग गया। गांव वाले उसे रोकते रहे, पर वह मुस्कुराता रहा। यह धरती मेरी माँ है और माँ की गोद में डूबने का डर नहीं होता। घंटों तक वह मेहनत करता रहा। शाम तक उसका शरीर थक गया, पर उसका मन दृढ़ था। रात को जब वह घर लौटा तो उसका पूरा शरीर चीचोड़ से भरा था, पर उसके चेहरे पर वही चमक थी, आत्मविश्वास की। उसकी पत्नी सुनीता बोली, अब छोड़ भी दो, जो होना था हो गया, माँ भी कब तक परखेगी। रघु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, धैर्य का मतलब रुकना नहीं, टिके रहना है। जब तू थक जाए तो याद कर, माँ ने हमें हिम्मत दी है, हार नहीं। कुछ दिनों बाद पानी उतर गया और जब लोगों ने देखा तो आश्चर्य हुआ। रघु की फसल अब भी खड़ी थी। बाकी खेतों की फसल गल चुकी थी, पर रघु की जमीन में पौधे हरे थे। गांव में चर्चा फैल गई, ये माँ काली का चमत्कार है। रघु मुस्कुराया, चमत्कार तो तब होता है जब इंसान अपने डर को हरा दे। माँ बस राह दिखाती है, चलना हमें होता है। उस रात वह फिर माँ के सामने बैठा। हवा में धूप की खुशबू थी और दीपक की लौ थिरक रही थी। वह बोला, माँ, तूने मुझे सिखाया कि जब मन हार मान ले तब भी शरीर को काम करना चाहिए, क्योंकि धैर्य का अर्थ प्रतीक्षा नहीं, निरंतरता है। तभी उसे एक गहरी अनुभूति हुई, जैसे माँ की आवाज भीतर से आई हो। तू अब समझ गया है बेटा, आत्मविश्वास कोई बाहर से आने वाली शक्ति नहीं, यह तेरे धैर्य की ही संतति है। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसके चारों ओर माँ का आंचल फैला है। वह रो पड़ा, माँ, अब मैं डर से नहीं, विश्वास से जीऊंगा। अगली सुबह उसने अपने गांव के कुछ बच्चों को खेत में बुलाया, उन्हें मिट्टी के ढेले दिए और कहा, इसे अपनी हथेली में दबाओ, फिर छोड़ दो। देखो, मिट्टी टूटेगी नहीं, बस अपनी जगह बदलेगी। ऐसे ही इंसान को भी जीवन के दबाव में टूटना नहीं चाहिए। बच्चे हंस पड़े, पर रघु की आंखें गीली थीं। उसे पता था कि अब उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए है जो धैर्य की ताकत भूल चुके हैं। धीरे धीरे रघु गांव का प्रेरणा स्रोत से बन गया। वह लोगों को सिखाने लगा, माँ की भक्ति सिर्फ मंत्रों से नहीं, कर्म से होती है। जब तू कर्म करता है और परिणाम की चिंता नहीं करता, तभी माँ काली तेरे भीतर बोलती है। रघु के भीतर अब कोई डर नहीं था, कोई असुरक्षा नहीं थी। वह जहां भी जाता लोग उसके चरण छूते, पर वह हंसकर कहता, मेरे नहीं, उस मिट्टी के छू लो जिसमें माँ काली का नाम बसा है। रात के सन्नाटे में वह फिर माँ से संवाद करता, माँ, पहले जब मैं हारता था तो मैं तुझसे जीत मांगता था। अब जब जीतता हूँ तो तेरी कृपा में और गहराई चाहता हूँ,
और से थी। उसके शब्द हवा में घुलते और माँ की मूर्ति के सामने दीपक और तेज जल उठता। उसने महसूस किया कि अब माँ की उपस्थिति बाहर नहीं, भीतर है। अब वह हर ध्वनि, हर मिट्टी के कण में माँ की शक्ति महसूस करता है। धीरे धीरे उसकी भक्ति साधना में बदल गई। वह अब खेत में हल चलाते समय भी मंत्र जपता, जय काली माता, जय धैर्य की देवी, और उसके शब्द जैसे मिट्टी में उतर जाते। हर बीज अब एक संकल्प बन जाता, मैं टिकूंगा, मैं टूटूंगा नहीं। गांव की सुबह अब रघु के नाम से शुरू होती थी। जब सूरज उगता तो सबसे पहले लोग उसके खेत की ओर देखते। उसका हर कदम अब किसी संदेश की तरह था, मौन पर गहरा। रघु अब सिर्फ किसान नहीं रहा था, वह अब विश्वास का प्रतीक बन चुका था। लेकिन जब किसी आदि आत्मा का प्रकाश बढ़ता है तो उसकी परीक्षा भी उतनी ही बड़ी होती है। माँ काली की लीला यही है, वह अपने भक्त को ऊंचाई देती है, पर उस ऊंचाई की जड़ें धैर्य से सींचती हैं। एक दिन गांव के पास के कस्बे से कुछ लोग आए। वे एक बड़ी कंपनी से थे जो वहां की जमीन खरीदना चाहती थी। उन्होंने कहा, हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, किसानों को अच्छा मुआवजा मिलेगा। अब खेती का जमाना गया, अब आधुनिकता का समय है। गांव के कई लोग लालच में आ गए। उन्होंने अपनी जमीनें बेच दी। रघु से भी कहा गया, रघु, तेरी जमीन सबसे उपजाऊ है, तुझे तो सबसे ज्यादा दाम मिलेंगे। रघु ने चुपचाप उनकी बात सुनी, फिर शांत स्वर में कहा, माँ काली ने यह धरती मुझे दी है, मैं इसे बेच नहीं सकता। यह मेरे लिए खेत नहीं, मंदिर है। लोग हंस पड़े। तू अभी भी पुराने जमाने में जी रहा है रघु, जब बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं, तू मिट्टी से चिपका हुआ है। रघु ने मुस्कुराकर कहा, जिस मिट्टी में माँ का नाम बसा हो, उससे जुड़ना पीछे नहीं जाना होता। वह तो जीवन का सबसे सच्चा कदम होता है। लेकिन वही दिन रघु की अग्नि परीक्षा की शुरुआत था। कंपनी ने गांव में काम शुरू किया और उसका असर रघु के खेतों तक पहुंचा। फैक्ट्री की धूल, गंदा पानी और मशीनों का शोर खेतों की शांति को तोड़ने लगा। उसकी फसलें धीरे धीरे मुरझाने लगीं। गांव के लोग अब उससे कतराने लगे। देखा, माँ काली तेरे साथ नहीं है अब। रघु के मन में एक पल को कंपन हुआ, पर टूटन नहीं। वह रात में माँ के सामने बैठा और बोला, माँ, मैंने तेरे नाम पर जो बोया उसे अब यह संसार नष्ट कर रहा है, क्या मैं चुप रहूं? उसके भीतर से स्वर आया, तो तेने मामा में गया क्या आओ माँ आगे कि क्या? जब तूने मेरे नाम पर कर्म किया तब क्या मैंने तुझे परिणाम दिया था? नहीं। अब जब तूने मेरे नाम पर हानि देखी देखी तो क्या मैं तुझसे धैर्य मांग नहीं सकती? रघु की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, माँ, मैं लड़ूंगा नहीं पर टिकूंगा। अगले दिन वह खेत पर गया। उसने देखा पौधे सूख रहे हैं, मिट्टी सख्त हो रही है। उसने हल उठाया और फिर वही किया जो हर कोई पागलपन कहता था। वह सूखी मिट्टी में फिर से हल चलाने लगा। लोग चिल्लाए, रघु, अब तो पूरी जमीन बर्बाद हो जाएगी। पर रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में बस माँ काली का स्वर गूंज रहा था, जो टूटकर भी खड़ा रहे वही सच्चा बांधभात है। दिन बीतते गए। रघु ने उस सख्त जमीन में रोज पानी डाला, मिट्टी पलटी, बीज बोया। भले ही आसमान सूना था, बादल नहीं थे, पर उसकी आत्मा में विश्वास का मेघ था। हर शाम वह दीप जलाता और कहता, माँ, मेरी मिट्टी से अगर फसल नहीं निकली तो भी इसमें तेरे नाम की जड़ें रहेंगी। कई महीने बीते। फैक्ट्री की मशीनें चलती रहीं, पर रघु की मिट्टी ने एक दिन चमत्कार किया। जहां लोग कहते थे कि अब कुछ नहीं उग सकता, वहां हरे अंकुर फूटने लगे। रघु की आंखों से आंसू बह निकले। वह झुककर मिट्टी को चूमा। माँ, तू मौन थी, पर तेरी कृपा गर्जन बनकर लौटी है। गांव में हलचल मच गई। लोग उसके खेतों को देखने आए। एक पत्रकार भी आया और बोला, रघु, यह चमत्कार कैसे हुआ? मिट्टी तो प्रदूषित थी। रघु बोला, मिट्टी बीमार नहीं थी, उसका विश्वास बीमार था। इस कहते मैंने बस माँ का नाम लेकर उसे याद दिलाया कि वह जीवित है। लोग रघु को सम्मान देने लगे, लेकिन उसने कहा, सम्मान मुझे नहीं, माँ काली को दो। उन्होंने सिखाया, धैर्य हार नहीं है, बल्कि उस अग्नि की तपस्या है जिससे सोना बनता है।
धीरे धीरे रघु का आत्मविश्वास अब दूसरों की प्रेरणा बन गया। वह बच्चों को सिखाता और बूढ़ों को सांत्वना देता। वह कहता, हर कठिनाई एक देवी है जो तुझसे तेरा असली चेहरा दिखाने आती है। फिर एक दिन एक और परीक्षा आई। फैक्ट्री का गंदा पानी गांव की नदी में गिर गया। लोग बीमार होने लगे। गांव वाले रघु के पास आए। तू माँ का भक्त है, कुछ कर, हमें बचा। रघु बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर माँ सब कर सकती है। पर माँ की कृपा तभी उतरती है जब मन साफ हो जाते हो, और तुम सबने तो डर में अपना मन मेला कर लिया है। गांव वाले चुप हो गए। रघु ने उन्हें बुलाया और कहा, आओ सब मिलकर माँ का नाम ले, बिना मांग के, बस माँ को याद करें। सैकड़ों लोग उसके साथ बैठे और गांव में पहली बार सामूहिक रूप से माँ काली का जाप गूंजा। जय काली माँ, जय धैर्य की देवी। जैसे जैसे लोगों का स्वर एक हुआ, हवा बदलने लगी, हल्की बारिश होने लगी, और वह बारिश जैसे आशीर्वाद थी। नदी का गंदा पानी बह गया और आसमान में बिजली चमकी। लोगों ने माँ काली का जयकारा लगाया। रघु चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें नम थीं। उसे माँ का स्वर सुनाई दिया, टुका सीधी नेत के क्या टुकाऊ का ऐसे ही। अब तू समझ गया बेटा, आत्मविश्वास वह दीप है जो दूसरों का मार्ग दिखाता है। तू अब मेरा दूत बन गया है। रघु ने सिर झुका लिया। माँ, अगर तू मेरे भीतर है तो मेरी सांसें तेरी आरती हैं। वह दिन रघु के जीवन का मोड़ था। अब वह सिर्फ किसान नहीं, एक साधक बन चुका था। गांव में उसका नाम श्रद्धा से लिया जाने लगा। लोग कहते, जिसके खेत में माँ काली रहती हैं, वहां फसल नहीं, आशीर्वाद उगता है। पर रघु के लिए यह सब मोह था। वह हर रात माँ के सामने बैठकर कहता, माँ, तू मुझे प्रसिद्धि नहीं, स्थिरता दे, मुझे नाम नहीं, नम्रता दे। और माँ की मूर्ति के पास रखे दीप की लौ झिलमिला उठती, जैसे माँ मुस्कुरा रही हो। रघुनाथ की आत्मा अब धीरे धीरे माँ की ओर खींचने लगी थी। खेतों में वह अब सिर्फ मिट्टी नहीं देखता था, वह उस मिट्टी में माँ का आशीष देखता था। उसकी हर सांस अब किसी अदृश्य शक्ति को पुकारती थी जो उसे भीतर से संभाल रही थी। लेकिन धैर्य का असली इम्तिहान अब आने वाला था, जब संसार उसके विरुद्ध हो जाएगा और वह फिर भी अपने भीतर की शांति को खोए बिना खड़ा रहेगा। दिन बीत रहे थे, फसल का समय करीब था। रघुनाथ ने जैसे तैसे बीज बो दिए थे, पर बारिश देर से आई। धरती सूखी पड़ी थी और लोग हंसने लगे। अरे रघु, माँ काली की कृपा से खेती होगी क्या? तेरी माँ तो तुझे खुद भूखा मारेगी। रघुनाथ मुस्कुराकर सुनता और चुप रहता। पहले जो शब्द उसे घायल कर देते थे, अब वे उसे माँ के नाम का स्मरण करा देते थे। उसे लगता था, माँ चाहेंगी तो ये सूखी धरती भी हरी हो जाएगी। लेकिन एक रात आंधी चली। रघुनाथ के खेत के ऊपर काले बादल छा गए। बिजली गरजने लगी, पर बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। रघुनाथ आसमान की ओर देखता रहा। उसकी आंखें भीग रही थीं, बारिश से नहीं, अपने विश्वास की नमी से। वह खेत के बीच खड़ा होकर बोला, माँ, तू ही तो कहती है, धैर्य रखने वाला ही तेरा सच्चा भक्त होता है। आज मैं खड़ा हूँ इस तूफान में, तेरी प्रतीक्षा में। चाहे आज भी बारिश न हो, मैं तेरे निर्णय पर भरोसा रखूंगा। अचानक एक तीव्र प्रकाश उसकी आंखों में पड़ा, जैसे बिजली धरती को छू गई हो। वह घबरा गया, पर तभी हवा शांत हो गई। कुछ ही पलों में आसमान से ठंडी बूंदें गिरने लगीं, पहले हल्की, फिर तेज, फिर मूसलाधार। रघुनाथ ने आंखें बंद कीं। बूंदें उसके चेहरे पर गिरतीं और वह मुस्कुराता। माँ, तूने सुना? तूने सचमुच सुना? गांव वाले अगले दिन हैरान थे। रघुनाथ के खेत की मिट्टी नर्म और सींची हुई थी, जबकि बाकी खेतों में उतनी बारिश नहीं हुई थी। लोग कहते, ये तो चमत्कार है। पर रघुनाथ जानता था, यह चमत्कार नहीं, यह धैर्य का प्रतिफल था। उसने अपने मन में कहा, धैर्य सिर्फ प्रतीक्षा नहीं, यह माँ पर विश्वास का दूसरा नाम है। कुछ हफ्ते बीते। पौधे अंकुरित हुए। हर सुबह वह माँ के नाम का जप करता और खेत में काम करते हुए मन ही मन बोलता, माँ, आज तू हवा बन के आई, कल धूप बन के आए, बस मेरे भीतर का साहस कभी मत छीनना। पर जीवन की परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। फसल तैयार हुई तो पास के नाले का पानी एक रात खेत में भर गया। आधा खेत बह गया। गांव वाले फिर आए। अब क्या करेगा रघु?
तेरी माँ ने तो खेल कर दिया। रघुनाथ चुप रहा। वह खेत के किनारे बैठा माँ की मूर्ति के छोटे से टुकड़े को हाथ में लेकर बोला, माँ, अगर तू चाहती है मैं फिर से शुरू करूंगा। तू देख, मैं हारूंगा नहीं। मेरा आत्मविश्वास तूने दिया है और इसे कोई जल नहीं सकता। उसने मिट्टी को हाथों में लेकर माथे पर लगाया। वह गीली थी, लेकिन उसमें सुगंध थी। उसे लगा यही माँ का आशीष है। अगले दिन वह फिर काम में लग गया। लोगों ने समझा पागल हो गया है, पर कुछ ही हफ्तों में उसके खेत से नई हरियाली उग आई। जिन बीजों को लोग बहा हुआ समझ चुके थे, वे दोबारा जीवित हो उठे। गांव के बुजुर्ग ने कहा, रघुनाथ, तेरा धैर्य तो अब तपस्या बन गया। रघुनाथ मुस्कुराया, नहीं बाबा, ये मेरा धैर्य नहीं, माँ की दी हुई शक्ति है। मैं तो बस उनके सामने झुका हूँ, बाकी उन्होंने खुद किया। उस रात रघुनाथ ने सपने में माँ को देखा। वह पहले से कहीं अधिक विशाल और तेजस्वी रूप में थीं। आंखों में असीम करुणा थी। वह बोली, मेरे पुत्र, तूने समझ लिया है, धैर्य वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता है। जिसे तूने धारण किया वही तेरा आत्मविश्वास बन गया। अब तू किसी तूफान से नहीं डरेगा, क्योंकि तेरे भीतर मैं हूँ। रघुनाथ ने आंखें खोलीं। मन में एक नई ऊर्जा थी। उसे लगा अब माँ उसके भीतर बस चुकी हैं। अब वह केवल खेत नहीं जोत रहा था, वह हर रोज अपने भीतर का आत्मविश्वास सींच रहा था। धीरे धीरे उसका नाम गांव में फैल गया। लोग उसके पास आने लगे, सलाह मांगने, प्रेरणा पाने। रघुनाथ हर किसी से एक ही बात कहता, माँ को पुकारो, लेकिन जल्दबाजी मत करो, धैर्य रखो, वही आत्मविश्वास का पहला बीज है। गांव की औरतें जब उसके घर से लौटतीं तो कहतीं, उसके बोलों में माँ काली की झलक है। रघुनाथ हंसता, मैं तो बस माँ का नाम जपता हूँ, बोल अपने आप बदल जाते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब माँ रघुनाथ को एक और राह दिखाने वाली थीं, जहाँ उसे खुद के भीतर के डर का सामना करना था, जहाँ आत्मविश्वास को न केवल जीना था बल्कि बांटना भी था। क्योंकि माँ काली की दृष्टि में सच्चा आत्मविश्वास वह है जो स्वयं को नहीं, दूसरों को भी उठाता है। रघुनाथ का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब स्थिरता थी, आवाज में एक अनोखी दृढ़ता और चाल में अजीब सा संतुलन। लोग कहते थे उसके भीतर माँ काली की शक्ति बसती है, पर रघुनाथ जानता था माँ बाहर नहीं, भीतर बैठी है। उसकी हर सांस, हर विचार, हर कर्म में वही है। गांव में धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। जो पहले उसे पागल कहते थे, अब उसकी बातों को ध्यान से सुनते। कोई दुखी किसान आता तो रघुनाथ उसे अपने खेत की मिट्टी दिखाता। देख, ये मिट्टी हर साल मरती है, फिर जीती है। अगर यह धैर्य रख सकती है तो तू क्यों नहीं? किसी की पत्नी बीमार होती तो वह कहता, माँ के नाम में ऐसी ऊर्जा है जो भीतर से हिम्मत जगाती है। बस सच्चे मन से झप कर, झिझक जल्दी मत कर। उसका घर अब एक छोटा सा आश्रय बन गया था, जहां लोग सांत्वना पाने आते थे। पर इस सब के बीच माँ काली उसकी आत्मा को एक और परीक्षा के लिए तैयार कर रही थी। एक शाम की बात है, आसमान पर फिर वही काले बादल उमड़े। गांव के ऊपरी हिस्से में नदी उफान पर थी। खबर आई, बांध टूट गया है, पानी नीचे के खेतों की ओर बह रहा है। रघुनाथ के खेत भी उसी दिशा में थे। लोग भागने लगे, कुछ अपने घर बचाने दौड़े, पर रघुनाथ दौड़ा अपने खेत की ओर। गांव वाले चिल्लाए, रघु, जा मत, तुझे कुछ हो जाएगा। पर रघुनाथ बोला, अगर माँ ने यह जल भेजा है तो वह मुझे डुबोने नहीं, परखने भेजा है। वह भीगे खेत में पहुंचा। पानी तेजी से भर रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और माँ का नाम लिया। माँ काली, अगर मेरा धैर्य सच्चा है तो तू इस बाढ़ में भी मेरी आत्मा को अडिग रखना। वह मिट्टी के किनारे पर बैठ गया। हवा तेज थी, पर उसका मन शांत। अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, बाबा, मेरा बच्चा पानी में गिर गया है। वह एक और किसान था जो अपनी झोपड़ी से चिल्ला रहा था। रघुनाथ ने बिना एक पल सोचे पानी में छलांग लगा दी। तेज बहाव, कीचड़, लकड़ियों की टक्कर, लेकिन उसके भीतर कोई डर नहीं था। उसने माँ का नाम लिया और आगे बढ़ा। माँ काली, तू ही मार्ग दिखा। थोड़ी देर बाद उसने बच्चे को देखा, एक लकड़ी से लिपटा हुआ। उसने पूरी ताकत लगाई और बच्चे को किनारे की ओर धकेला। खुद बहता गया,
पर माँ के नाम का जटे जप नहीं छोड़ा। जय काली माँ, जय काली माँ। जब आंखें खुलीं तो उसने खुद को नदी किनारे पाया। गांव वाले चारों ओर खड़े थे। किसान का बच्चा सुरक्षित था। लोगों ने कहा, रघु, तू माँ का साक्षात वरदान है। रघुनाथ मुस्कुराया, नहीं भाई, मैं तो बस माँ के धैर्य की लहर में था। जो धैर्य मैंने सीखा था वही आज आत्मविश्वास बनकर मुझे बचा लाया। उसके बाद कई दिन तक गांव में चर्चा रही। लोगों ने कहा, रघुनाथ ने सिर्फ अपने खेत नहीं बचाए, उसने पूरे गांव को धैर्य का अर्थ समझाया। माँ की मूर्ति के सामने दीप जलाते हुए वह बोला, माँ, अब समझ गया हूँ, आत्मविश्वास कभी किसी चमत्कार से नहीं आता, वह तो धैर्य से जन्म लेता है, और जब माँ की कृपा उसे छूती है तब वह अजेय बन जाता है। उस रात रघुनाथ को एक अलौकिक सपना आया। वह एक विशाल काली ज्योति के बीच खड़ा था। उस प्रकाश के बीच से माँ काली प्रकट हुईं। वह पहले जैसी उग्र नहीं थीं, बल्कि अपार शांति का रूप थीं। उनकी आवाज में निखाई सहित आनी की आवाज मधुर थी। रघुनाथ, तूने अपने भीतर वह शक्ति पाली है जो संसार से परे है। तू अब जान गया है। धैर्य से जन्मा आत्मविश्वास ही सच्ची साधना है। वह शक्ति जो बाहरी संकटों को झेल ले, वही भीतर का प्रकाश है। रघुनाथ ने सिर झुका लिया। माँ, मैं तेरी ही शक्ति का अंश हूँ। बस यही चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास आए उसे तेरे इस धैर्य की शक्ति मिल जाए। माँ मुस्कुराई। तो जा मेरे पुत्र, अब तू कर्म का साधक बन गया है। तेरा आत्मविश्वास अब केवल तेरा नहीं, पूरे गांव का होगा। सपना समाप्त हुआ, पर रघुनाथ के भीतर नई सुबह खिली। वह उठा, बाहर देखा। सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ रही थी। पानी उतर चुका था और जहां बाढ़ आई थी वहीं अब हरी हरी पत्तियां झांक रही थीं। वह बोला, देख माँ, तेरा आशीर्वाद मिट्टी में भी धड़कता है। धीरे धीरे गांव ने उसे धैर्य बाबा कहना शुरू किया। लोग दूर दूर से आते और वह सिर्फ एक ही वाक्य कहता, जो माँ काली पर भरोसा रखता है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि जब धैर्य भीतर पनपता है, आत्मविश्वास अपने